Hello everyone, welcome to another class. Today we are going to take up a class for 12th grade students and topic of the day's class is step-by-step guide to commence your company in India, part 1. And dear students, it is from unit 2, entrepreneurial planning. It's a very important class and in today's class we are going to talk about a private company, a public company, and how to commence your company in India. Legal formalities to commence your company in India, I'll take it in the next part. In today's part, we are going to talk about this soon. Let's start today's class. These are the points under discussion. In today's class, we are going to talk about these points. The first one is understanding type of companies, private and public. Second point, why choose a private company? Explained. Third point, suitability of company form, key considerations, and commencing a company in India, a step-by-step guide. Believe me on this, bacho, these topics are really important from the perspective of examination, and I want that you all should pay attention on all the points discussed in the class. बच्चों हमारी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म है, रूल है. हमें जो भी पॉइंट ऐसा लगता है कि students might encounter difficulty in explaining those points. I'll repeat once again. हमें जहां भी ऐसा लगता है that students might encounter difficulty in explaining the points, हम उन points को reference points बना के बहुत easy language में बच्चों के लिए explain करते हैं, so that once they are going through our sessions, our notes, they feel confident to write good answers in the examination. So without much ado, let's start today's class. Understanding types of companies, private and public. Let's take up the points. Entrepreneurs, when choosing the company form of organization, must divide between main two types. The first one is a private company and second one is a public company. अब जनरली बच्चों आपको आइडिया होता है कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है, but when you see our sessions, our classes, you got to know that we are explaining each and every point. Though I can do it verbally, but हम रिटन में इसलिए देते हैं ताकि जब आप हमारे नोट्स को, हमारे सेशंस को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा दैट हाउ डिटेल ओरिएंटेड आवर क्लासेस आर. तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी. क्या होती है प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी के 3 ट्रेड्स होते हैं. पहला है लिमिटेड ओनरशिप, सेकंड है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और थर्ड है रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर्स. तो पहला पॉइंट है लिमिटेड ओनरशिप. इसका मतलब है प्राइवेट कंपनीज हैव अ रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप रेंज with a minimum of 2 and a maximum of 50 members can join, excluding employees. तो आप 2 व्यक्तियों से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 मेंबर्स तक रख सकते हैं. I'll write it down here. मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है. ये मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज अलग है. ये मेंबर्स हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉयज अलग है, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज. अच्छा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. Entrepreneurs prefer private companies for a more controlled and a private business environment. तो बच्चों जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका एनवायरनमेंट को इसलिए कंट्रोल्ड माना जाता है क्योंकि अनलाइक पब्लिक कंपनीज इनके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं होते, एनवायरनमेंट क्लोज होता है और जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वही सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं.
So it won't, get public. So entrepreneurs prefer private companies for a more controlled and private business environment. Third, restricted share transfers. Ownership stability is maintained as private company restrict the transfer of shares. लिमिटेड लोग होते हैं, तो जो ओनरशिप है वो स्टेबल रहती है, इसमें आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ओनरशिप स्टेबल रहती है. तो रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर्स, ओनरशिप स्टेबिलिटी इज मेंटेन एज प्राइवेट कंपनीज रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स. तो ये 3 पॉइंटर्स हो गए समझने के लिए कि प्राइवेट कंपनीज क्या है. अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनीज की. पब्लिक कंपनी, इसके भी 3 ट्रेड्स हैं, मेजर 3 ट्रेड्स हैं: ब्रॉडर ओनरशिप, एक्सेस टू कैपिटल एंड मार्केट विजिबिलिटी. अब ब्रॉडर ओनरशिप का मतलब क्या है? Public companies offer a broader ownership base with a minimum of 7 members and no upper limit. तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स. ये क्वेश्चन आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क में आ जाएगा. एंड नो अपर लिमिट, या ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, या तो ये ओटीक्यू आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इधर ट्रू एंड फॉल्स. और बच्चों ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में ना एक एक नंबर वैल्यूएबल है. तो अगर आप इन पॉइंटर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, आई क्लिप इट फॉर यू ओवर. मैं इसे क्लिप कर देता हूँ. इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस कई बार टीचर्स भी मार्क कराते हैं क्लास में, आप खुद पढ़ते हैं, आपको कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, तो इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, चाहे वो आपको लगे, चाहे वो टीचर्स को लगे, और फिर वेदर यू टेक इट फ्रॉम आवर क्लासेस. तो इसका मतलब ये होता है कि दीज आर द लाइंस विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. तो इसलिए कहा जाता है कि डिटेल स्टडीज इज ऑलवेज प्रेफर्ड एंड बेनिफिशियल. अच्छा, एक्सेस टू कैपिटल, और पब्लिक कंपनी है, पैसा भी चाहिए चलाने के लिए, ज्यादा मेंबर्स हैं. Public companies can invite the public to subscribe for shares. पब्लिक उस पर पैसा लगाती है, उसका एक पार्ट खरीद लेती है, पैसा लगा के शेयर खरीद लेती है. ओके, शेयर कंपनी का, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ लार्जर पूल ऑफ कैपिटल. और बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा होते हैं पब्लिक कंपनी. मार्केट विजिबिलिटी, भाई बड़ी कंपनी है, लोगों ने पैसा लगाया है, ज्यादा पैसा लगाया, तो बट ऑब्वियस है विजिबिलिटी बढ़ेगी. पैसे से क्या होता है कि आप विजिबल हो जाते. आप समझ इस बात को. व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, यू स्टार्ट बिकमिंग विजिबल, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर सोशल, यू स्टार्ट फॉर्मिंग मोर नेटवर्क. तो बीइंग लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एनहांसेस मार्केट विजिबिलिटी. भाई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, विजिबल हो गई है, और ऐसी कंपनीज क्रेडिबल भी ज्यादा. आर यू गेटिंग इट? एक क्रेडिबल भी ज्यादा. तो एनहांसेस विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब ये पॉइंट्स है ना आपकी बुक्स में नहीं, तो ये पॉइंट्स आपको सिर्फ हमारे नोट्स में मिलेंगे. आगे भी मैं कई पॉइंट्स बताऊंगा जो जिससे आपको लगेगा दैट व्हाई मेब्रिक्स इंडिया सॉल्यूशन इज डिफरेंट. अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों. व्हाई चूज अ प्राइवेट कंपनी? एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन. हाँ. Despite restrictions, entrepreneurs prefer private companies for these privileges. Restrictions हैं, आप जॉब करेंगे ना, वहां लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं. आप प्राइवेट कंपनी में बिजनेस करेंगे तो वहां रिस्ट्रिक्शंस है पर थोड़ी कम है. और आप पब्लिकली चले जाएंगे, पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, तो वहां पर पैसा भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है, मनी भी ज्यादा है, और फिर चैलेंजेस भी ज्यादा. लाइकवाइज, ठीक है. तो अब इसके कुछ हम ट्रेड्स पढ़ लेते हैं. ओनली 2 मेंबर्स नीडेड फॉर अ सिंपलर सेटअप. 2 लोग रिक्वायर्ड है. ओनली 2 डायरेक्टर्स नीडेड फॉर मीटिंग स्ट्रीमलाइनिंग डिसीजन मेकिंग. 2 ही मेंबर्स से स्टार्ट हो सकती है, और 2 ही डायरेक्टर्स मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं
and they can orient and streamline decision making. बड़े बड़े डिसीजन कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ही कर सकते। अच्छा, कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस रिड्यूसिंग पेपर वर्क। अब प्रोस्पेक्टस में आपको नॉर्म्स भी डालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो कहते हैं कैन फाइल अ स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ अ बिगर प्रोस्पेक्टस। तो डिटेल्स इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग पेपर वर्क, और पेपर वर्क कम होता है इसके अंदर। फोर्थ, कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली एनेबलिंग क्विकर ऑपरेशंस। कम लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो आप इसको जल्दी स्टार्ट कर सकते। आपको ज्यादा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपने बिजनेस का आइडिया बनाया और 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट कर। नो नीड फॉर अ स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। कोई लीगल आपको मीटिंग्स नहीं करनी, कोई रिपोर्ट मेकिंग नहीं करनी, तो इसमें आपका बहुत समय की बचत। नॉन मेंबर्स कैन नॉट इंस्पेक्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंश्योरिंग प्राइवेसी। जो बाहर के लोग हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें राइट्स ही नहीं है, तो प्राइवेसी मेंटेन रहती। नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो रेम्युनरेशन है वो भी सेट आप ही करेंगे। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में तो भैया इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इतने सारे डिसीजन मेकिंग की जाती है, तो जो पैसा भी दिया जाता है, जो सैलरीज भी बांटी जाती है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, होती ज्यादा है बट वो एक नॉर्म के अंडर होती है। ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी। नो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है नहीं यहाँ पे। Directors need not have qualification shares, easing entry for skilled professionals. तो बहुत ज्यादा आपको यू नो डायरेक्टर्स क्वालिफाइड नहीं चाहिए, जिससे आप डीम्ड फिट मानेंगे उसको आप डायरेक्टर बना सकते हैं। अब जो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। पहला है, कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस रिड्यूसिंग पेपर वर्क। मैंने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया क्योंकि एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। No restrictions on managing director appointments, providing autonomy. And director need not have qualification shares, easing entry for skilled professionals. तो मैं समझा चुका हूं। थोड़ा सा इसको ना मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाकर आपको एक्सप्लेन किया। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दैट। पहला पॉइंट, कैन फाइल अ स्टेटमेंट। कैन फाइल अ स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ बिग डॉक्यूमेंट, लेस वर्क एंड मोर फन। Okay, so when you start a company, there's usually a big document called a prospectus that you must fill out. आपको एक बड़ा prospectus भरना पड़ता है. But in a private company, you can skip that big paperwork and file a simpler statement instead. This way, you spend less time on paperwork and more time on making your business awesome. Wow, what a beautiful line. What a beautiful line. This way, you spend less time on paperwork and more time on making your business awesome. अच्छा, second point ले लेते हैं. No restrictions on managing director appointments. You get to decide. Imagine you have a team and you want to choose the leader of the team. In a private company, there are no strict rules about who you can pick as the managing director. कोई specific rules नहीं कि आपको इसी व्यक्ति को रखना है. That's the leader in the business world. You get the freedom to choose the person you think is the best fit, like selecting the right leader who can lead your team to success. Third point, director need not have qualification shares. It means making it easy for skilled professionals. In a private company, the people who lead and make important decisions are called directors. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. इन प्राइवेट कंपनी
The people who lead and make important decisions are called directors. तो आपको fill in the blanks आ जाएगा, are called dash. आपको पता होना चाहिए उन्हें directors कहा जाता है. These directors do not have to own a specific amount of company shares. इनको company shares own नहीं करने पड़ते, which makes it easier for smart and skilled professionals to become directors. It is like saying you can be the leader without needing to buy a special ticket. तो बच्चों, अगर आप प्राइवेट कंपनी चलाते हैं तो आपको हैसल्स कम. बात मुद्दा यही है कि हैसल्स कम है. पर अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा हैं. पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. Suitability for a company, key considerations. Choosing the company form depends on factors like, अगर आपने कंपनी फॉर्म करनी है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर कंपनी स्टार्ट की जा सकती है. और वो बेसिस क्या है? Being a heavy or basic industry for those with substantial production. So बच्चों, अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आप थोड़ी प्रोडक्शन करेंगे या फिर हैवी प्रोडक्शन करेंगे. थोड़ा माल बनाएंगे, थोड़ी लेबर रखेंगे, छोटा यूनिट लगाएंगे, छोटी मशीनरी लगाएंगे, कम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रखेंगे, या फिर उसके अलहदा बड़ा यूनिट लगाएंगे, बड़ी मशीनरी लगाएंगे, ज्यादा मैन पावर रखेंगे, ज्यादा लेबर रखेंगे, और यू प्रोड्यूस मोर, आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो. इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस, आइडियल फॉर एक्सपेंसिव बिजनेसेस. आप लार्ज स्केल ऑपरेशंस चलाएंगे, माल बनाना आसान है, माल को बेचना मुश्किल है, उसके लिए ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है. तो आइडियल फॉर एक्सपेंसिव बिजनेस, उसके लिए है जो बिजनेस बढ़ चुके हैं, एक्सटेंसिव हो चुके हैं, स्प्रेड आउट हो चुके हैं. तो वर्ड एक्सपेंसिव का मीनिंग मैंने यहाँ पे दे दिया. इसका मतलब महंगा नहीं होता. महंगे में जो एक्सपेंसिव होता है ना, वो PENSIVE होता है. जो एक्सपेंसिव होता है वो होता है एक्सटेंसिव और स्प्रेड आउट बिजनेसेस. एक्सटेंसिव और स्प्रेड आउट बिजनेस इज अ डिफरेंट वर्ड. रिक्वायरिंग सब्सटैंशियल फंड्स, बेनिफिशियल फॉर कैपिटल इंटेंसिव वेंचर्स. बहुत पैसा चाहिए इन्हें स्टार्ट करने के लिए, सब्सटैंशियल फंड्स चाहिए. जितना लगे वो तो लगेगा ही, हो सकता है ज्यादा भी लगाना पड़ जाए. एंड कैपिटल इंटेंसिव वेंचर्स, कैपिटल इसमें लगता बहुत आसान है कि किसी की फैक्ट्री चल रही है. आपको क्या पता, फैक्ट्री चले ना चले, सैलरी तो घूमती रहती है लोगों की. बहुत इंटेंसिव वेंचर्स होते हैं, बहुत पैसा लगता है. इन्वॉल्विंग हैवी रिस्क, suitable for entrepreneurs taking bold steps. बड़ा काम बड़े रिस्क, छोटा काम छोटा रिस्क, कोई काम नहीं कोई रिस्क. If you want to lead your life without blame and praise, do not do anything. अरिस्टोटल कहते थे कि अगर आपने अपनी जिंदगी ब्लेम और प्रेज के बिना जीनी है तो कुछ मत करिए, और अगर आप कुछ करेंगे तो ब्लेम भी लगेंगे और प्रेजेस भी. इन्वॉल्विंग हैवी रिस्क, बड़े काम है, बड़ा रिस्क है, कोई काम स्टार्ट करते उसमें रिस्क तो आएगा ही आएगा. सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस टेकिंग बोल्ड स्टेप्स, और जो एंटरप्राइजेस बोल्ड स्टेप्स ले सकती है उनके लिए सुटेबल. बीइंग टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट फॉर बिजनेसेस रिलाइंग ऑन एडवांस्ड मेथड्स. और बच्चों, ये ना प्रोडक्शन का काम टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें एडवांस मेथड्स यूज किए जाते. अब इन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि जो स्टूडेंट्स 12th ग्रेड के हैं उन्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो इन ऑर्डर टू राइट डाउन एग्जामिनेशन आंसर्स. अब चलिए इन पॉइंटर्स को एक एक करके देख लेते हैं. बीइंग अ हैवी और बेसिक इंडस्ट्री मेकिंग बिग स्टफ. Imagine a company that makes big or important things like big machines or essential stuffs for everyone. That what we mean by heavy or basic industry, making things that are super important and maybe a bit heavy. Second, involving large scale operations doing big business. ये सारे पॉइंटर्स मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे. Think of a company like a big puzzle. Some companies are like huge puzzles because they do a lot of things on a big scale. It's like playing a big game of business
where you have many pieces to manage, and that's what we call large scale operations. तो अगर आप large scale operations में हैं तो बड़े काम और बड़ा operations है, and that's how you require bold steps. As you require you know very qualified people, very patient people, those who are good decision maker, those who are good problem solvers, those who are um, collaborators, those who are creative, and those who are very good communication skills wise. Okay, requiring substantial funds, needing a lot of money. Starting a business sometimes needs a lot of money, especially if it is something big like building a factory or creating something important. So when we say a business requires substantial funds, we mean it needs good amount of money to get started, involving heavy risks, taking big chances. Picture a business adventure like a thrilling roller coaster ride. Business is, बच्चों, अगर आप मेरी पहली क्लासेस आपको याद होंगी तो मैंने आपको बताया है कि बिजनेस थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड, इसमें ना अप्स एंड डाउन्स बहुत, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. अगर बिजनेस में आपके स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना, जैसे मैं नीचे बनाई, ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो बिजनेस इज डेड, आपका बिजनेस नहीं चलेगा या चल ही नहीं रहा. लॉस गेन, लॉस गेन, लॉस गेन. ओके, अच्छा. Some businesses take a bold and daring steps, like going on an exciting adventure. When we say a business involves heavy risks, it means they are taking big chances, just like the daring parts of a roller coaster. Being technologically complex, using super smart stuff. Some businesses are like high-tech wizard using super smart tools and gadgets. When we say a business is technologically complex, it means they rely on advanced methods and smart technology to do their magic. It's like using cool and clever tricks to make things awesome. बच्चों याद रखिएगा मेरी बात को, आप बिजनेस है ना तब अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आप है ना बिजनेस को जीते हैं. बिजनेस में अप आ गया, आपने पैसा कमा लिया, आपको अच्छा लगेगा, पर तैयार रहिएगा कि डाउन भी आएगा. आप कितने जितने मर्जी स्किलफुल हो जाए, आप जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर लें, स्ट्रेटजीज बना लें, डाउनफॉल आएगा और फिर वो अप जाएगा. तो अगर आप अपने बिजनेस को एंजॉय करते हो, अपने काम को एंजॉय करते हो और उस एंजॉयमेंट को अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट बना के रखते, तो बिजनेस इज गोइंग टू क्रिएट यू, इट इज गोइंग टू क्रिएट यू, गिव यू अ रीबर्थ. इट्स सो पावरफुल. आगे, ओके, आगे चलते हैं. कमेंसिंग अ कंपनी इन इंडिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. बट इसके बाद है ना मैं आपको इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज बताऊंगा, बट दैट इज द नेक्स्ट क्लास. ओके, द जर्नी टू स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से होती है, मैं स्टेप्स बता रहा हूं. पहला है कंसीविंग द आइडिया, द इनिशियल स्पार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आइडिया कंसीव कर रहे भाई, ये काम करना है, कोई भी काम आप करें, कोई भी काम आप स्टार्ट कर सकते हैं. आप प्रोडक्शन का कर सकते हैं, आप सर्विसेज का कर सकते हैं, पर वो स्टार्ट कहां से होगा? विद स्पार्क, विद एन आइडिया. अच्छा, इवेल्युएटिंग फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी टू इंश्योर अ सब्सटेंशियल वेंचर. भैया ये वेंचर चलेगा नहीं चलेगा, आपको काम करते करते पता चल जाए. सिक्योरिंग एसेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फाइनेंसेस एंड स्किल्ड पर्सन. आपको एसेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा और लोग चाहिए होंगे. एंश्योरिंग इनकॉर्पोरेशन थ्रू लीगल प्रोसीजर्स, पूरे लीगल प्रोसीजर्स आप फॉलो करिए. अरेंजिंग बिजनेस कमेंसमेंट विद अ वेल थॉट आउट प्लान. जब बिजनेस कमेंस करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें. इसलिए बिजनेस ना करें कि आप जॉब नहीं करना चाहते या आपको जॉब मिल नहीं रही. प्लानिंग एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस. फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई. एक बार बिजनेस चल जाए, आप एक्सपैंड करिए, डाइवर्सिफाई करिए, दो बिजनेस और स्टार्ट कर लीजिए. ये बिजनेस की कहानी है, ये बिजनेस के फायदे. एंड बिजनेस इज वेरी ब्यूटीफुल.
Very beautiful. We have to enjoy each and every part of it. Be fair, be hardworking, be innovative, be creative, and be collaborative. अब मैं इन पॉइंटर्स को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. कंसीविंग द आइडिया बच्चों, पहला पॉइंट ले लेते हैं. Entrepreneurship begins with a spark of creativity. कुछ करना है और बेहतर करना है. Where individuals produce exciting and innovative ideas, setting the foundation for their business venture. Idea आ गया और business venture की foundation डाल. Evaluating feasibility and viability. Entrepreneurs assess the practicality and potential success of their ideas, ensuring they are not only exciting but also feasible and viable for creating a sustainable and enduring venture. सिर्फ इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करना कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपने इसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी भी देखी कि भैया ये लोग एक्सेप्ट करेंगे. पॉसिबल है, फिजिबल इज पॉसिबल, पॉसिबल है, वायबल है, कैसे लोगों की लाइफ को आसान किया जा सकता है, लोगों के लिए यूजफुल है, और अगर इस्तेमाल किया जा सकता है, यूजफुल है, तो इसे स्टार्ट किया जा सकता है. Securing essential resources, ये मैं समझा चुका हूं आप. That's easy. To turn their idea into reality, entrepreneur needs essential resources such as finances and skilled personnel. This step involves securing the necessary funds as assembling a capable team. टीम बाद में आएगी, पहले पैसा, पहले बिजनेस स्टार्ट होगा 2-4 लोगों से, और जब एक बार बिजनेस रनिंग में आ जाएगा ना, then you can have a team with you, departments with you. Ensuring incorporation and legal procedures, making the business official and structured. कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, सारा पेपर वर्क करें. जीएसटी सर्टिफिकेशन लेनी है, बिजनेस को रजिस्टर करवाना है, सारी चीजें ध्यान पूर्वक करें. बिजनेस करने में ना आपको अच्छा लगे, बट अगर आप जल्दबाजी में बिजनेस करते हैं तो फिर तरह कहें पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, तो बिजनेस को ना अनस्टेबल कर देगा. So entrepreneurs go through legal procedures to ensure the proper incorporation of their venture. Properly से start करते हैं, establishing a recognized and legitimate entity. but जो legitimate बहुत प्यारा word है, इसका मतलब है law. हर काम under the scanner of the government कर. Arranging business commencement with a plan, with all the pieces in place. आपने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, आपने रेंट पे कोई जगह ले ली है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है. Entrepreneurs arrange the commencement of their business, launching it with a well thought out plan. Planning is very important. जो इनिशियल जो मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है ना बच्चों, उसमें सारा दिन होता है काम और रात को होती है प्लानिंग. ये 24x365 चलता है 4 से 5 साल. जीतेगा कौन? जो अच्छा सर्विसेज देगा, जिसके प्लान्स अच्छे होंगे और जो राइटली प्राइस्ड होगा. तो कैसे होगा? बाय अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इन द मॉर्निंग एंड देन प्लानिंग एट नाइट. अब आप बच्चे सोचो रेस्ट कब करें? रेस्ट अभी नहीं करेंगे, आप कर लेंगे 2-4-5 घंटे. ये जो जर्नी टूवर्ड्स ड्रीम्स है ना, इट रिक्वायर्स अ पेशेंस टू टेक रेस्ट. आपको इसमें रेस्ट लेने के लिए भी ना पेशेंस रखना पड़ेगा. पेशेंस जरूरी नहीं कि काम को करने से पहले रखना पड़ता है, कई बार रेस्ट लेने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है. कई बार हमारे दिमाग को भी एक दिमाग की जरूरत होती है जो हमें ऑटो सजेशंस देता है कि भैया ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है. हमने स्टार्ट तो बिजनेस कर लिया, हम कह रहे नहीं यार, आराम नहीं किया आज, सारा दिन रेस्ट नहीं किया, 4-5 घंटे सोए नहीं, तो फिर बिजनेस भी सो जाएगा. एक बार आप मेहनत कर लीजिए, एक बार आप फाउंडेशन कंक्रीट की बना दें, और फिर आप देखिए आप जो चाहेंगे ये बिजनेस आपको देगा. अच्छा, with all the pieces in place, entrepreneurs arrange the commencement of their business, launching it with a well thought out plan and outlines the initial steps and strategies for success.
इतना सब करने के बाद भी, प्लानिंग करने के बाद भी, स्ट्रेटजीज बनाने के बाद भी, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगी। कई बार आप सारा महीना बैठ के प्लान बनाएंगे एंड इट विल फेल, दोबारा बनाना पड़ेगा, तिबारा बनाना पड़ेगा, तो फिर प्लान को भी लगेगा, यू नो देयर इज अ पर्सन हु इज मैड आफ्टर हिज गोल इज बिहाइंड मी, तो मुझे अब काम करना पड़ेगा। अच्छा, सिक्स्थ, प्लानिंग एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब आपका काम रनिंग में आ जाए, चल पड़े, लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। Entrepreneurs strategically plan for a long-term success of their venture by envisioning and preparing for expansion and diversification. बच्चों, expansion होता है कि आप पहले आपका छोटा यूनिट था, अब आपने बड़ा यूनिट लगा लिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप पहले बिजनेस ए चलाते थे, अब आप बिजनेस बी चलाएंगे, फिर सी, फिर डी, फिर 50 बिजनेस चलाएंगे। और अपने बिजनेस को जगह जगह ले जाना, अलग अलग शहरों में ले जाना भी डाइवर्सिफिकेशन है। ensuring sustained growth and prosperity. और बच्चों, फिर मेरी बात याद रखना, entrepreneurship is a roller coaster ride, ups downs, ups downs, ups downs, up। और एक मेरी बात सारी जिंदगी आपने याद रखनी है, 2 स्टेप लॉस एंड 1 स्टेप गेन। ये 2 स्टेप लॉस हो सकता है आपको 100 रुपए का हो, और 1 स्टेप गेन कैन बी ऑफ 10,000 रुपीज। यही बिजनेस है, यही प्लानिंग है, यही स्ट्रेटजी है, यही क्रोनोलॉजी है, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और यही एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिया, कर्म। आप कर्म करेंगे तो आपको गलतियां भी होंगी, पर उन गलतियों को हो जाने नहीं देंगे, उन गलतियों को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे, उनसे सीखेंगे और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं। तो आज के सेशन में बात करी अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ कंपनी, मैंने बात करी थी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज की। वाई चूज अ प्राइवेट कंपनी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। सुटेबिलिटी ऑफ कंपनी फॉर्म, कंपनी बनाने के कुछ तरीके हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और कमेंसिंग अ कंपनी इन इंडिया, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने आज आपको दी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस में रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन हर बार दिया जाता है, और इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं दैट वी शुड नॉट गिव नॉर्मल क्लासेस टू स्टूडेंट्स। बच्चों, इसमें हम आपको आज के चैप्टर का सिनॉप्सिस दे रहे हैं, वोकैबुलरी दे रहे हैं फ्रॉम द सेशन, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश में। 10 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्पेसिफिक सेशन, उनके आंसर्स। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन, उनके आंसर्स। And on top of it, true and false from the session और उनके आंसर्स। तो बच्चों, मेरा ये यकीन है कि आप मेरी क्लासेस अटेंड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट्स टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। यू जस्ट हैव टू अटेंड दीज क्लासेस, do rigorous practice section, and see, you are going to score complete full marks in this way. I'll assure you that rigorous practice section is so important. It's a USP of our company, UVP of our company. So bacho, may God bless you all. See you all in the next class. Bye bye for now. Take care. God bless you all. Thank you very much. And always remember, it's a presentation by Mavericks India Solution. Raise the standard of doing things. With Mavericks India, you will always gain.